Hello friends, welcome again. Today we are going to start new lesson in the geography. Name of the lesson Physiography and Drainage. The major outline points in these lessons are comparative study of physiography of India and Brazil, okay, in which we are making a comparison, physiographic division comparison, that is in India, Himalayas, North Indian plains, peninsula, coastal plains, and island group. Also in Brazil, the highlands, the great escarpment, coastal region, plains, and island groups. The comparison, that means physiographic comparisons of India and Brazil on the basis of these five major points. Then comparative study of drainage of India and Brazil. The main drainage, that means in which two another parts, Himalayan drainage and peninsular rivers. In Brazil, Amazon River, Paraguay, Paraná rivers, São Francisco rivers, and coastal rivers. On these basis, we are making a comparison of a drainage. That means physiography and drainage. In this lesson, what is the physiography? Comparative study of India and Brazil on physiography on these five major points, and also drainage of India and Brazil on 2 points, that is Himalayan and Amazon rivers. Then major 2 points, that means drainage in India, then peninsular river drainage in Brazil, like this. Okay, we clear all these points step by steps. In this chapter is about a comparative study of India and Brazil with reference to the physiography and drainage. Okay, then first of all, the first point is that comparative study of a physiography of India and Brazil. First of all, I read and then I explain. Then on which basis physiographic point of comparison? There are 5 physiographic points, division points. In India, Himalayas, the North Indian plains, the peninsula, coastal plains, island groups. And in Brazil, the highlands, the great escarpments, the coastal region, the plains, and the island groups. Now, physiographic division of India, in which first point is Himalaya. The information about physiographic division of Himalaya is as follows. That means the features of Himalaya: Himalayan range in south-north direction, Himalayan range in west-east direction, like this. Information about physiographic division of Himalaya is as features: one of the young fold mountain in the world. One of the young fold mountain in the world. Major mountain system is continent of Asia, that means Asia. Himalayan range in south-north direction, Himalayan range south-north direction, that is Shivalik, southernmost range. Lesser Himalayas, greater Himalayas. South-north range, this is the south-north direction. Himalayan range in west-east direction, west-east, that means east-west direction. Western Himalayas, that is called Kashmir Himalayas. Central Himalaya, that is Kumaon Himalayas. And eastern Himalayas, that is Assam Himalayas. Then second point is that North Indian plains. Before that, First of all, I read the 5 points regarding with the physiography of Indian physiography, and then I explain. North Indian plains. In the information of a North Indian plains is as follows: a division in which Ganga plains, Thar deserts, Punjab, Haryana plains. The features of Ganga plains. The delta of Ganga Brahmaputra rivers, Sundarban, called as Sundarban, extends in the state of West Bengal in India and Bangladesh.
Sundarban is the largest delta region in the world. Then, features of a third desert. The western part of the North Indian plains is occupied by third desert or Murustadi. The state of Rajasthan is occupied by a third desert. Features of Punjab Haryana plains. The plains of Punjab lies to the north of third desert. It has a very fertile soil. Agriculture is highly developed in this region. Then third point is peninsula. That means first Himalayas, second North Indian plains, and third peninsula. Peninsula, the information about peninsula is as follows. First, mountains. The Aravalli Mountains range is located in northern part. Vindhya and Satpura ranges are located in the central part. Western Ghats, that is the mountain region, is located in the western part, and Eastern Ghats mountain region is located in the eastern part. That means Aravalli mountain range northern part. Aravalli is at northern end, Vindhya and Satpura at the central place, and Western Ghat, that is the mountain region, is at western place, is located western part, and Eastern Ghat mountain range is located in the Eastern Ghats. Then plateaus. It includes series of plateaus bordering the plains region. That is the peninsula concept. Then fourth part, coastal plains. The coastal regions of India, the information of the coastal regions of India, that is borders of Arabian Sea, the features of a western coastal region and features of the eastern coastal region. Because of why in India, east and west, both sides coastal region is available or coastal region is present. So features of the eastern coast, western coastal region and eastern coastal region is as comparatively we are looking at those points: border of Arabian Sea, rocky and comparatively narrower, short and westward flowing rivers flow to the western coast and meet the Arabian Sea. The rivers from the estuaries in the western coastal region. Now the features of eastern coastal region borders the Bay of Bengal in western borders of Arabian Sea. Rocky coastal region is rocky and comparatively narrower and comparatively broader. In eastern side, the coastal region is comparatively broader. In western side, short and westward flowing of rivers, and here long and eastward flowing rivers flow to the eastern coast and meet the Bay of Bengal. Rivers from the estuaries in the western coastal regions, rivers from deltas in the eastern coastal region. That is a coastal regions or coastal plains in India. And last point, that is the island groups. The information of island groups is as follows. The physiographic division of India, island groups, that is the features of islands in the Lakshadweep Islands and Andaman Nicobar Islands. In India, there are two major islands. One is the western side, one is the eastern side. That is Lakshadweep Island is located in the Arabian Sea. Atoll islands comparatively small in extent and are short in height. And Andaman Nicobar Islands located in the Bay of Bengal. Lakshadweep in the Arabian Sea. Andaman and Nicobar Islands located in the Bay of Bengal. Islands in Andaman group, volcanic islands comparatively large in extent, have a high hilly regions in their interior part. Nicobar group, most of islands, atoll islands. There are major points. These are major points of an Indian coastal region. That is an Indian, physiographic region. Okay.
देन वी आर क्लियर वन बाय वन हियर। तो बात ऐसी है, लेसन का नाम है फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज, मतलब प्राकृतिक रचना और जल प्रणाली। प्राकृतिक रचना के हिसाब से भारत के 5 प्रमुख विभाग होते हैं। प्राकृतिक के हिसाब से, प्राकृतिक रचना के हिसाब से भारत के मुख्य 5 प्रकार है। उसमें पहला प्रकार हिमालय, दूसरा उत्तर भारतीय मैदान, तीसरा द्वीपकल्प, तीसरा द्वीपकल्प, चौथा किनार मतलब कोस्टल रीजन, किनार पट्टी का प्रदेश, समुद्र का, और चौथा है द्वीप समूह। तो पहला हिमालय। तो प्राकृतिक रचना के हिसाब से भारत के 5 जो मुख्य प्रकार है उसमें हिमालय, ये एक अर्वाचीन पर्वत है। तजाकिस्तान से पामीर के पठार से लेकर हिमालय पूर्व दिशा तक फैला हुआ है। आशिया खंड का एक प्रमुख पर्वत प्रणाली ये हिमालय पर्वत है। भारत में जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय फैला हुआ है। हिमालय एक ही पर्वतरांग नहीं, ऐसे बहुत से समांतर पर्वतरांग, मतलब जो हम उसको क्या बोलते हैं, बहुत सी पर्वत लाइंस इसमें शिवालिक नाम की जो पर्वतरांग है वो दक्षिण दिशा की तरफ की है, दक्षिण दिशा की तरफ की है। और उसको ये जो दक्षिण दिशा की जो शिवालिक पर्वतरांग है वो अर्वाचीन पर्वतरांग है। शिवालिक पर्वतरांग की तरफ से हम जब उत्तर की दिशा में जब जाते हैं तो लघु हिमालय, बृहद हिमालय दैट इज हिमाद्री, एंड हिमालय की उसके बाद मतलब उसके आगे की हिमालय की जो आगे की जो पर्वतरांग है वो हमको दिखाई देती है। इस तरह से अर्वाचीन से प्राचीन जो पर्वत की माला है, श्रृंखला है, वो ऐसी है। इस पर्वतरांग का पश्चिम हिमालय दैट इज कश्मीर, मध्य हिमालय, कुमाऊं हिमालय और पूर्व हिमालय, आसाम हिमालय ऐसे ही मतलब प्राकृतिक दृष्टि से भाग हो जाते हैं। ओके, मतलब आपको अभी समझ में आया होगा हिमालय कहाँ से कहाँ तक है। पश्चिम दिशा की तजाकिस्तान के पामर की पठार से लेकर हिमालय पूर्वोत्तर दिशा तक फैला हुआ है। हिमालय जो है मतलब पूर्व पश्चिम दिशा से हम जब देखेंगे तो वो एक ही पर्वतरांग नहीं, बहुत सी पर्वत श्रृंखलाएँ हिमालय की जो समांतर है। उसमें से दक्षिण दिशा की तरफ की जो है वो शिवालिक पर्वतरांग है, और दक्षिण दिशा की तरफ से हम जब उत्तर की दिशा की तरफ आते हैं तो शिवालिक पर्वतरांग ये बहुत प्राचीन श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला। उसकी तरफ से हम जब उत्तर की दिशा में आते हैं तो लघु हिमालय, मृदु हिमालय और इस तरह से जो पर्वत की श्रृंखला है वो जब प्राचीन काल से है वो हमको दिखाई देती है। इस पर्वत श्रृंखला में पश्चिम हिमालय मतलब जो हिमालय पश्चिम की दिशा से पूर्व की तरफ देखते हैं तो पश्चिम हिमालय जो आता है वो कश्मीर हिमालय उसको बोलते हैं। जो मध्य हिमालय है उसको कुमाऊं हिमालय बोलते हैं, और जो पूर्वोत्तर भाग की तरफ से फैला हुआ है उसको आसाम हिमालय, ऐसे ही भाग होते हैं। ऐसे हम इसके जो पार्टीशन या प्राकृतिक तरफ से उसका भाग होता है, ये हो गया हिमालय। दैट इज द प्राकृतिक रचना के हिसाब से हिमालय के बारे में जानकारी। देन दूसरा पार्ट जो है नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, मतलब उत्तर भारतीय मैदान। ये प्राकृतिक विभाग से एक दूसरा विभाग पड़ता है। प्राकृतिक विभाग हिमालय के दक्षिण छोर से पकड़ के भारतीय द्वीपकल्प उत्तर सीमा तक फैला हुआ है। वैसे ही वो पश्चिम दिशा में राजस्थान पंजाब से लेकर पूर्व साइड मतलब आसाम की तरफ, पूर्व साइड में आसाम की तरफ फैला हुआ है। बहुतांश ये जो भाग है वो सपाट और सखल भाग है। उत्तर भारतीय मैदान जो विभाग है उसके 2 विभाग होते हैं।
अरावली पर्वत, अरावली पर्वत की पूर्व साइड गंगा नदी का जो भाग है उसको गंगा नदी का मतलब गंगा नदी का जो सपाट मैदान बोलते हैं और गंगा नदी का भाग भी बोलते हैं। या इस मैदानी प्रदेश का जो उतार है वो पूर्व तरफ से मतलब पश्चिम अरावली पर्वत, अरावली पर्वत का एक बाजू उधर का, एक बाजू मतलब एक पश्चिम का, एक पूर्व का। ओके, मतलब जो उतार है पर्वत का वो पूर्व की तरफ से फैला हुआ है और पश्चिम जो विभाग है वो गंगा नदी का भाग बोलते हैं। भारत के पश्चिम बंगाल का जो भाग है, एरिया है, पश्चिम बंगाल स्टेट का जो एरिया है और बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल का एरिया राज्य का, बांग्लादेश और गंगा मतलब पश्चिम बंगाल राज्य का बहुत सा एरिया बांग्लादेश मिलके गंगा ब्रह्मपुत्र प्रणाली का त्रिभुज प्रदेश बनता है और उसका नाम सुंदरबन है। हम टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हैं। और ये जो सुंदरबन है दुनिया का सबसे बड़ा त्रिभुज प्रदेश है। बंगाल बांग्लादेश मिलके वो त्रिभुज प्रदेश बनता है। उत्तर भारतीय मैदान जो उत्तर भारतीय मैदान के पश्चिम भाग में जो वाळवंट, उसको हम रेती का एरिया बोलते हैं, ये थर का वाळवंट, अदरवाइज उसको हम मरुस्थली के नाम से जाने जाते हैं। राजस्थान का पश्चिम भाग, राजस्थान का पूर्व नहीं, राजस्थान का पश्चिम भाग बहुत मैक्सिमम जो एरिया है राजस्थान का वो इस रेती की मैदान से मतलब वालुकामय प्रदेश, वाळवंट जिसको हम बोल सकते हैं, वालुकामय प्रदेश से फैला हुआ व्याप्त है। और उसका उत्तर दिशा मतलब पश्चिम दिशा राजस्थान का थर, पूर्व दिशा मतलब वो आगे वाला आसाम की तरफ से आया हुआ और उत्तर दिशा ये अरावली पर्वत और दिल्ली साइड डोंगर पर्वत श्रृंखला वो पश्चिम दिशा की तरफ फैले हुए। इस मैदान की निर्मित सतलज और उसकी उपनदियां उनकी संचयन से हुई है। पंजाब का जो स्टेट है, पंजाब स्टेट, वो साधारण हम देखा जाए वो पश्चिम की दिशा से उतरता हुआ उतार की तरफ से फैला हुआ है। इस मैदान की जो मृदा है मतलब मिट्टी है वो सुपीक होने की वजह से पंजाब और हरियाणा की साइड में खेती का व्यवसाय अब बड़ी मात्रा में चलता है। ओके, दिस इज द सेकेंड पार्ट, मतलब ये हुआ दूसरा भाग जो नॉर्थ इंडिया प्लेन्स, उत्तर भारतीय मैदान, पहला हुआ हिमालय, दूसरा नॉर्थ भारतीय प्लेन्स, उत्तर भारतीय मैदान। तीसरा जो प्रकार है दैट इज कॉल्ड पेनिसुला, उसको हम द्वीपकल्प से जानते हैं। उत्तर भारतीय मैदान प्रदेश, उत्तर भारतीय जो मैदानी प्रदेश है वो दक्षिण दिशा की तरफ से फैला हुआ है। हिंदी महासागर की तरफ से वो सिकुड़ता गया, निमुड़ता मतलब उत्तर भारत से लेकर ऐसा सिकुड़ता हुआ हमको दिखाई देता है। जैसे कि अपना हिंदुस्तान का हम नक्शा देखेंगे तो दक्षिण की तरफ से वो सिकुड़ता गया, उसको हम प्रदेश को हम द्वीपकल्प से या पेनिसुला के नाम से जानते हैं। इसमें छोटे बड़े पर्वत जो मतलब मैदानी भाग इसमें आते हैं। इसमें उत्तर दिशा की तरफ से अरावली पर्वत और जो पर्वत है उत्तर दिशा में अरावली पर्वत वो सबसे प्राचीन बली पर्वत है। और इस प्रदेश के भाग में एरिया में जो सपाट मतलब प्लेन मैदान जो है उसकी पठारों की श्रृंखला इसमें हम देख सकते हैं। मध्य भाग में विंध्य और सातपुड़ा, पश्चिम घाट और पूर्व घाट, पश्चिम घाट जो पश्चिम रीजन में आता है और पूर्व घाट जो पूर्वोत्तर भाग में आता है, मध्य भाग जो विंध्य और सातपुड़ा पर्वत। ओके, इस तरह से द्वीपकल्प का मतलब पेनिसुला ए पार्ट हो जाता है, मतलब प्राकृतिक रचना के हिसाब से।
ओके। दूसरा जो चौथा जो पार्ट है, जिसको हम कोस्टल रीजन मतलब किनार पट्टी का प्रभाव प्रदेश, भारत को तकरीबन 7,500 किलोमीटर लंबाई का कोस्टल रीजन मतलब किनारी प्रदेश अटैच है। मतलब किनारी भारत का जो किनारी एरिया है 7,500 किलोमीटर का है। द्वीपकल्प की मतलब द्वीपकल्प के पश्चिम घाट और पूर्व घाट के मिला के मतलब जो किनार पट्टी है, पूर्वोत्तर किनार पट्टी और पश्चिमेतर किनार पट्टी, दोनों ही किनार पट्टी में बहुत फर्क है। पश्चिम किनारा अरबी समुद्र से लगकर है। हाँ, जो किनारा है पश्चिम किनारा वो जरा सा पथरीला है। पश्चिम घाट से जो पर्वत की श्रृंखला है वो किनारे तक आती है। इस किनार पट्टी की जो रुंदी है, चौड़ाई है, वो बहुत कम है। मतलब हम ब्रेड्थ जिसको बोलते हैं वो कम है। और पश्चिम घाट से जो स्पीड से बहने वाली जो छोटी बड़ी नदियां हैं इस किनारे से उतरती है। उसकी वजह से जो नदियां हैं, नदी का जो मुख बोलते हैं, वहाँ पे हमको खाड़ी तैयार हुई है और उसके साथ साथ उसका त्रिभुज प्रदेश नहीं निकलता। मतलब जो नदी का मुख है, जो छोटी बड़ी नदियां हैं, जो पर्वत से बहती बहती स्पीड से बहती हुई किनारे तक आती है और उसके मुख पे, नदी के मुख पे वो खाड़ी तैयार होती है, लेकिन उधर का त्रिभुज प्रदेश नहीं बनता, मतलब दिखाई नहीं देता। और जो पूर्व किनारा है, पूर्व किनारा मतलब बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल से लगकर है। बे ऑफ बंगाल जो है इसका किनारा जो है नदी की संचयन से बना हुआ है। इस किनारे पे पूर्व वाहिनी नदियाँ, जैसे कि वेस्टर्न रीजन में पश्चिम वाहिनी नदियाँ, यहाँ पे पूर्व वाहिनी नदियाँ पश्चिम घाट से पूर्व घाट तक आके मिलती है। पश्चिम घाट से निकलकर पूर्व घाट तक आके मिलती है। जैसे कि बहुत दूर से और नदियाँ पूर्व किनारे तक आती है, इसके लिए ज़मीन का जो उतार है वो कम होता है, मंद होता है। इसकी वजह से नदियाँ स्पीड से नहीं बहती और उसकी वजह से उनके साथ, नदियों के साथ जो गाड़ आता है, उसकी वजह से किनार पट्टी का जो है प्रदेश जो है, हाँ, जो नदियों का समुद्र से मिलाप होता है उसको मुख बोलते हैं और उस मुख पे त्रिभुज प्रदेश तैयार होता है। जैसे कि महाराष्ट्र की कृष्णा नदी, वो पश्चिम में निर्माण होता है, मतलब पश्चिम से बहते बहते पूर्वोत्तर बे ऑफ बंगाल में जाके समुद्र में मिलती है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र, ये 3 स्टेट से बहती हुई बे ऑफ बंगाल में, बंगाल के उपसागर में जाके मिलती है। और लेकिन उतार जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, वो स्लो जो है वो कम होने की वजह से नदियों का स्पीड कम है और उसकी वजह से नदी के साथ साथ जो मिट्टी बहती है और जो फैलती हुई जाती है, उसकी वजह से उधर कहाँ पे पूर्वोत्तर साइड में त्रिभुज प्रदेश, किनार पट्टी का जो प्रदेश है वो त्रिभुज प्रदेश बहुत बड़ी मात्रा में दिखाई देता है। लेकिन पश्चिम दिशा में जो नदियां हैं स्पीड से बहने की वजह से उनके साथ में मिट्टी या अदर मात्रा में कुछ नहीं ज़्यादा आता, इसके लिए वहाँ पे खाड़ी बनती है, वहाँ पे त्रिभुज प्रदेश हमको दिखाई नहीं देता। ओके, ये हो गया चौथी प्राकृतिक रचना। और आखिरी प्राकृतिक रचना दैट इज द्वीप समूह, आइलैंड्स। भारत की मुख्य भूमि में और अनेक मतलब भारत के किनारों पे बड़ी मात्रा में छोटी बड़ी जो आइलैंड्स, बेट्स हैं, उनका जो समावेश है वो किनारी बेटों में किया जाता है। उसको छोड़ के अरबी समुद्र और बंगाल का उपसागर, इसमें एक बड़ा द्वीपकल्प समूह है
अरबी समुंदर में जो समूह है, द्वीप समूह, उसको लक्षद्वीप द्वीप समूह बोलते हैं। और बंगाल की खाड़ी में और बंगाल के उपसागर में जो छोटे बड़े जो आइलैंड्स हैं, वो जो समूह है, द्वीप समूह, उनको अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाने जाते हैं। लक्षद्वीप में मतलब वेस्टर्न साइड में जो लक्षद्वीप बेट है, वहाँ पे जो बेटे हैं वो कंकण द्वीप बेटे हैं, प्रवाल की बेटे हैं। वो उसका जो विस्तार है वो विस्तार से छोटे, और उनकी कद जो है बेटों की, वहाँ पे जो आइलैंड्स हैं वो कद, उनकी जो हाइट्स है वो कम है, विस्तार से छोटे हैं। और अंडमान निकोबार की द्वीपकल्प में जो ज्वालामुखी की वजह से बने हुए बेट्स हैं वो विस्तार से बड़े हैं, बड़ी मात्रा में फैले हुए हैं। उनके अंतर्गत बड़े बड़े पहाड़, डोंगर, इस समूह में बैरन बेट पे एक जागृत ज्वालामुखी भी है। निकोबार आइलैंड्स मतलब निकोबार समूह में भी कंकण द्वीप स्वरूप में फैले जाते हैं। ओके, जो अगला पार्ट मतलब ये हिंदुस्तान का जो प्राकृतिक रचना, जो 5 प्राकृतिक रचना है, उसका हमने विस्तार से ब्यौरा सुना। अगले वीडियो में ब्राज़ील के बारे में हम देखेंगे, प्राकृतिक रचना, ब्राज़ील की प्राकृतिक रचना के बारे में हम देख लेंगे। ओके, टुडे वी स्टॉप एंड कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो।